So hi everybody, a very good evening to everyone. So can anybody please let me know whether my screen is visible and my voice is clear or not, by which we can start this session. So we just have to start from the 13. Okay, 12 हमने ख़त्म कर दिए थे, 11 में एक ही था डिसोसिएशन कंस्टेंट वाला. अभी हम किसको देखेंगे? अभी हम 2013 से देखेंगे. ओके ओके, लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक. ओके ओके, सो यहाँ पे the first question is that how much time, or you can say that time in minutes, it's basically required for sunlight to reach the earth. तो how to calculate this one? तो अगर कोई टाइम अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो reach somewhere, that means we need the velocity. Okay, the velocity of light you guys already know about it, so that's why I'm just trying to solve this question in this way, that what is given. यहाँ पे तो कुछ गिवन नहीं है, बस डिस्टेंस दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक आना है. ओके, तो सनलाइट कहाँ से आएगा? तो सन से ही आएगा. तो दैट डिस्टेंस शुड बी द फ्रॉम सनलाइट टू अर्थ. ओके, सो यू जस्ट नीड दैट डिस्टेंस. लेट मी एडमिट समवन हु इज जस्ट ट्राइंग टू जॉइन. सौरभ. हाँ, ओके ओके, so what is given is that the distance. So then what is the distance between earth and sun? Anybody? The distance between earth and sun, take the average one. Hello, anybody has any idea? 1 हाँ, that will be 1.5 into 10 to the power 8 kilometer. Otherwise, if you just trying to see more accurate things, that will be 1.496 into 10 to the power 8 kilometer. Okay, so this distance you should know. Otherwise, you can't do this one. Otherwise, अगर आपको directly याद है तो it will be something around 8.3 or more particularly 8.31, like it will come like that. Okay, but we will see. So this is the distance. Okay, then after that, if you're trying to see carefully, then what is the velocity of light? We guys already know about it in meter per second. तो मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, now what we'll see, we require the time. That means what divided by what we will get the time? Anybody who has any idea? This is simple thing. The distance divided by velocity, we are going to get the time now. And first of all, let's just confirm that this one, इसको मीटर किलोमीटर में कर लेते हैं. Then it will be 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. Okay, then what will do now to find out the time? So distance divided by velocity. It might be difficult for the JAM students, okay, but it is not that much difficult. But after that, there will be some concepts, just like the geochemistry part, वो जो part आएगा, तो that will be might difficult for the JAM students, but it's okay, no problem. Okay, if you want to understand, try to understand. Otherwise, this is not for you guys. Okay, okay. तो distance कितना था? 1.496 into 10 to the power 8 kilometer, and we got the velocity of light in kilometer per second, that is 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. So we will get our answer in second. Okay, so if you're trying to cut, then it will get 10 to the power 3, then 1.496 divided by 3 into 10 to the power 3. So it will come around 498. Let me just calculate again. So 49867 सेकेंड. ओके, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ मिनट. तो हाउ विल डू दैट? विल जस्ट डिवाइड 60. ओके, 1 minute 60 सेकेंड. तो इसको अगर 60 में डिवाइड करेंगे तो 6 into 60 into 8, दैट विल बी 480. देन अनदर 480 से 1867. तो 1867 नहीं होगा, तो पॉइंट देने से 180 तो हो जाएगा. देन 60 into 3 180. then उसके बाद it will be come around just like 8.3. so the answer will be 8.3, or we can say 8.31. okay, is it clear for everybody? This is very easy one. You just need, if you need the distance in between them, then this thing will be more easier. Otherwise it will be much more difficult to understand. नहीं तो आपको यहाँ पे और कोई डिटेल्स गिवन ही नहीं है, तो आप प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए. okay okay, so if this question is clear, so just have to move to the next question, and that question is basically related to the equatorial velocity. okay, so this is the given. You can see what is asked here, the equatorial velocity. okay, assuming the earth to be a perfect sphere. But initially we know what is the shape of the earth. Anybody, any GATE students who are preparing for GATE,
व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? प्रोलेट, ओब्लेट या ऐसे कुछ? एनीबडी? Geode. yes, that is geode, but what is the shape in the geometrical format? हम उसको क्या बोलते हैं? Omelette. Omelette sphere. That will be oblate sphere. Oblate spheroid भी कहते हैं, ठीक है? Geode is the correct one, but it's okay, no problem. Okay, तो but we just have to consider that oblate spheroid as a oblate spheroid केस में क्या होगा? वहाँ पे दो एक्सिस रहेगा, x मैक्सिमम, एक मिनिमम. जैसे कि इन केस ऑफ द यूनिएक्सल, कौन से केसेस में? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव केसेस में जो उसका जो इंडिकेटर सेक्स जैसे होता है ना, ऑप्टिकल इंडिकेटर, इट विल बी लुक लाइक दिस. तो यहाँ पे इट इज जस्ट लुक लाइक दिस. ओह, ओके, सो इट विल बी लुक लाइक दिस. तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे आपको मतलब ओब्लेट जैसा बनाना, बिकॉज वी नीड ए सर्कल हियर. सो दिस इज योर इक्वेटर and these are the two poles. This is your northern pole, this is your southern pole, and the distance from the center, okay, distance from the center to the northern pole या फिर southern pole, pole cases में तो it will be much more smaller, so that will be around 6357 kilometer, and equator cases में it will be just like 6378, I think. हाँ, 6378 kilometer. But in these cases, what we are going to do, we are assuming that earth should be a perfect sphere. Then after that, we just have to find out the equatorial velocity. Okay, so this thing I am just trying to erase because this is not our concern. Okay, and if the earth will be a sphere, then what will be the radius for the perfect sphere? It will be the average one. तो ये कितना होगा? 6371 किलोमीटर, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं, या फिर इन दोनों अगर कंबाइन करके उसका मीन निकालोगे ना, तो देन यू विल फाइंड द 6371 किलोमीटर. ओके ओके, तो जस्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वेटोरियल वेलोसिटी. तो इक्वेटोरियल वेलोसिटी मीन्स क्या है? तो मैंने पहले एक स्पीयर बना लेता हूँ. Just consider this as a sphere, but it doesn't look like, but just try to consider about like a sphere. Okay, so in these cases what will happen? So this will be your equator. Okay, so equatorial velocity means if you are standing here, or if any object which is on equator, okay, so it will acquire some velocity. Why? Because the earth is rotating about its own axis. Okay, it is also rotating around the sun also, but if you are trying to see in case of the earth, it is also rotating about its own axis. तो इसका भी कुछ velocity होगा, and that velocity is called as equatorial velocity. Getting my point ना? Then what will be the equatorial velocity? How we can define them? So it is the velocity which is obtained by any object which is on equator by the with respect to the rotation of the earth about its own axis. Okay, so this is the equatorial velocity. We just have to find out that. Okay, so how we will do that? Anybody who has any idea how to do that? Hello, you got the equatorial velocity. मतलब अगर आप इक्वेटर में Distance by time कर. Sir, एंगुलर distance by time कर देंगे तो हो जाएगा ना 24 hours. हाँ, that is there is two methods. Okay, first one is very easy. So let me just tell you how we are going to do. Fast method. Method one. Oh, someone is waiting in the joining room. Just a second. Okay, no problem. Okay, so fast method is basically very easy. If you see, this is a sphere. Okay, so sphere cases में if it is in the equator. Okay, so if it is in the equator. विश्वजीत. ओके, दिस इज इन द इक्वेटर. तो हमको अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो मेरे को अगर इसी एरिया में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके, या फिर इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो ये पिछला वाला हटा देते हैं. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मेरा वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी मीन्स इट इज सम डिस्टेंस. ओके, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है. दैट मीन्स पर आवर हाउ मच डिस्टेंस आई एम कवरिंग. ओके, तो एवरी आवर आई एम जस्ट कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस. ओके, तो इट इज द सेम थिंग. तो मैंने को यहाँ से घूम के फिर वही में आ जाना है. तो इफ़ यू जस्ट नीड द डिस्टेंस, दैट मीन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये स्पीयर जैसा हमने लिए हैं, तो अगर इसको हम काटेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक ए सर्कल. ओके, ये जो रेड कलर का यहाँ पे, इट विल बी लाइक ए सर्कल. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो इफ आई एम जस्ट गेटिंग द डिस्टेंस, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं? एनीबडी? इसका कैसे निकालते हैं सर्कमफेरेंस? What is the formula? If you have, yes, very good. If you have a radius, we have already got the radius, that is 671 kilometer. So the circumference will be simply यहाँ पे c लिख लेते हैं, circum. तो ये कितना होगा? That will be 2 pi r.
ओके 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 6371 किलोमीटर ओके सो इट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस ओके तो 2 इंटू तो इट विल बी कम अराउंड 4.16 किलोमीटर या फिर यू कैन जस्ट चेक ओके एंड इफ यू जस्ट ट्राइंग टू टेक दिस डिस्टेंस ऑल्सो अगर यहाँ पे आपने 6378 पे लिखते हो विच इज बेसिकली द इक्वेटोरियल डिस्टेंस ओके इक्वेटोरियल रेडियस फ्रॉम द origin you can say so it is also going to give you this one but 731 cases में भी you will get some lesser value okay so this part is done okay now what is the time कितना टाइम आपको लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आने के लिए anybody just imagine कितना टाइम लगेगा if I'm just trying to start rotating from this point then I'm again coming this ये पॉइंट में अब मेरे को फिर भी आना है 24 hours. yes that will be 24 hours okay then what will be the velocity I am getting at the equator it will be 40074.16 kilometer divided by 24 hour okay so it is just trying to if you are trying to solve this fraction or you can say break this fraction it will going to give you the velocity that will be 166.76 kilometer per hour okay so this is one method okay it is very easy one and then after that we can also use the angular velocity okay there will be angular displacement real displacement okay तो उसको भी use करके we can easily find out the formula okay so let's see how we are going to do let me just add one how to add a paper here okay so we'll just see how we're going to do that okay हमारे पास इक्वेटर वेलोसिटी निकालने के लिए ओके तो फर्स्ट थिंग दिस इज द मेथड नंबर 1 एंड इन मेथड 2 हम क्या करेंगे अभी मेथड नंबर 2 में पहले एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे ठीक है तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसको अगर हम किस में लिखते हैं ओके तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 pi divided by t t means the time required to complete one rotation around the earth about its own axis okay so that will be and sometimes it is also called as 1/t को हम frequency भी लेते हैं that is also another function कि आप उसको अगर डिराइव करना चाहते हो तो 2 pi frequency okay so that can be correct also okay and this t is here 24 hours okay is it clear okay so you want to ask anything you can just unmute अपने कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है okay some students want to join let me just admit them okay so this is the angular velocity formula and we'll see how and if you're trying to see this angular velocity omega so it can be written as 2 pi okay and 24 that will be a 24 hour and what will be the unit here that will be radian per hour okay so is it clear okay so we'll see some graphical representation ki how it is happening and all the things okay if this is the earth okay and this is the center okay so you are in the equator getting my point you are in the equator तो इक्वेटर से अगर जो भी डिस्टेंस आपको कवर करना है तो सिंपल थिंग इसको अगर थीटा अगर कोई तो ऐसे डिस्टेंस में कवर होगा ना तो दैट विल बी दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके तो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज थीटा थीटा इज बेसिकली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके एंड ये जो यहाँ से ये दिस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम ए टू बी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं सिंपली एस लिखेंगे तो एस मीन्स सिंपल डिस्टेंस okay or you can say linear displacement or you can simple arc displacement आप कुछ भी लिख सकते हो तो that you just try to understand कि क्या हो रहा है तो linear displacement along the arc okay so distance is s okay so how it is happening here if this is the radius that is r
तो we can get a relationship that is your theta. That means the angular displacement can be written as the linear displacement divided by r. Okay, is it clear? Now we got the angular velocity. This is angular displacement. Okay, the angular velocity हमको पहले पता था, that is your 2 pi divided by t. ओके और सिंपली इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज योर थीटा, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड उसको करने के लिए कितना टाइम चाहिए. ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी ना. वी हैव आल्सो डन इन दिस फास्ट क्वेश्चन कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. द सेम थिंग यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एंगुलर डिस्टेंस दैट इज योर, यू कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर एस बाई आर. ओके, थीटा विल बी एस बाई आर. We will just trying to figure out with the equations, but just try to understand what is the difference between the angular displacement, angular velocity, and how it looks like in the figure or in can say diagram format. Okay, so now we got the linear speed. This is the linear displacement. Okay, that is the s. तो इसी केसेस में अगर हमको velocity चाहिए तो linear velocity, that means from a to b कितना velocity होगा. Okay, तो what it will be, linear velocity means the distance, the linear displacement divided by time. Okay, and now we know what is s. s यहाँ से हम निकाल सकते हैं from equation number 1. Okay, s क्या होगा, that will be theta r. Okay, what is theta? Theta is basically the angular displacement into r. r is the radius. Okay, and that is t. सिंपली यहाँ पे नॉर्मल ये कैपिटल टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन उसके बाद वी गाइस ऑलरेडी नो थीटा बाई टी, दैट इज योर एंगुलर, एनीबडी एंगुलर वेलोसिटी. ओके, देन वी गॉट द रेडियस. ओके, देन लिनियर वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू आर. ओके, ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी है, तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वन, बिकॉज ये तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ना. 2 पाई वैल्यू इज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द पाई वैल्यू, दैट इज 22 डिवाइड बाई 7, अदरवाइज 3.141. तो 2 इंटू 3.141 डिवाइड बाई 24, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एंगुलर वेलोसिटी. एंड इफ यू नो द रेडियस एट द इक्वेटर, दैट इज 6371, क्योंकि हम नेक्स्ट स्पीयर जैसा ले रहे हैं उसको. अदरवाइज अगर सिंपली आप अर्थ का नहीं वहाँ पे स्पीयर नहीं दिया होता, देन यू कैन टेक द 6378. सो इन दैट केसेस यू विल फाइंड द वेलोसिटी एट द इक्वेटर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस वन विल बी द रेडियस विल बी 6371 किलोमीटर इंटू द 2 पाई 3.141 divided by 24. So if you solve this one, it is going to give you the equatorial velocity. Okay, let me just calculate for this one, 6371 into this much, so it is going to give you 1,66974 किलोमीटर. ठीक है, तो हम पहला वाला हमारा कितना आया था 16976. इन दैट केसेस इट विल बी कम 166.74. ओके, anybody has any doubt in these cases, just try to do the, I think the first method will be easier for everybody, but the second method you can also use. Just try to find the angular velocity, then फिर angular velocity से आपको angular displacement पता लगाना है, then उन दोनों को combine करके you can find out the linear velocity, क्योंकि linear velocity will be the real velocity, और you can say linear speed उसको भी बोलते हैं. Okay, the angular displacement, angular velocity, there is the we can find the exact distance, exact velocity from A to B point. Okay, so is it clear for everybody, or anybody is facing any issue? These are the gate questions, so it will take some time. Okay, so anybody wants to do this one? If a radioactive isotope has a decay constant, that means this is the lambda is 1.5 into 10 to the minus 10 year inverse. Okay, its half time, or you can say its half life will be, anybody, this is should be in year, this should be in year. What is the formula we are going to use? Lambda equal to 0.693 by by t half. T half, yes sir. तो t half is the time of the half life period. एक half life period के लिए कितना टाइम लगता है in years. Okay, then what will be the formula? तो अगर आप simply आप O n by n0 e to the minus lambda t लेके करेंगे तो you will also find, there will be no problem. But we guys already know. Let me just admit someone.
Okay, so you guys already know what is the formula for the t half. That will be simply आप t half से कर सकते हैं, that is ln2. Okay, ln2 and the value will be ln2 का value it will become around 0.693 divided by lambda. Okay, तो 0.693 lambda क्या है, lambda is 1.55 इंटू मैंने ये जो 10 to the power -11 था उसको ऊपर ले गया 10 to the power 11, तो that will be that much years. 0.693 divided by 1.55 into 10 to the power 11 years. Anybody who can calculate this one? Simply हमको यहाँ पे 10 to the power 9 में करना है, तो पहले इसको 9 को कन्वर्ट कर लेते हैं. तो that means 69.3 divided by 1.55 into 10 to the power 9 years. Okay, so how what will be 69.3 divided by 1.55? 1.26. 69.3 नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा. 69 से आप लगभग 2 के आसपास डिवाइड कर रहे हैं, तो इट विल बी मच मोर. सर यहाँ पे तो ऊपर तो 10 to the power -11 था, आप क्यों 10 to the power -10 लिए हैं? विच वन? आपने शायद चेंज कर दिए हैं, तो 10 था, मैंने 11 ले गया है, तो इसको 10 कर रहा हूँ अभी. दिस वन ना? यस सर. तो ये 10 था, दैट मीन्स इसको अगर 9 करेंगे तो इट विल नॉट बी 69.3, इट विल बी 6.93. तो 6.93 डिवाइड बाई 155, दैट मीन्स सिंपली 693 डिवाइड बाई 155 इंटू 10 to the power 9. Thanks for noticing these things. Okay, 693 divided by 155, so it will become around 150 into 4, that will be 600. So that means it will be more than 4, so it will be around 4.47 into 10 to the power 9 years. Okay, the answer will be 4.47, this one B. Okay, is it clear for everybody? This is the simple calculation. यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मतलब समझने वाला चीज़, बस you just have to calculate. You have the calculator and you just have to calculate. Okay, so I'm just trying to move to the next question. Okay, so this is the question number 28, and in this question the void ratio in percentage asked for a is given for a sandstone that is 25%. Okay, and it asks the porosity. See, there is a direct formula, but I always recommend don't go through the formula, because if you are stuck somewhere then it will be more complicated to understand the situation. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले समझ लो कि व्हाट इज द void ratio. तो void ratio कैसे निकालते हैं, so that is the volume of void divided by volume of solid. But in case of the porosity, how it is required, how it is written, the volume of void divided by volume of total. Okay, so in this way we are going to find out the relationship in between them. ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स सिंपल टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या गिवन है पहले लिख लेता हूँ. द गिवन इज दैट void ratio इन परसेंटेज, तो उसको हम सिंपली फ्रैक्शन में कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ void अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज 0.25. देन उसके बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द वॉल्यूम ऑफ void हैज 0.25 times of volume of solid. Okay, this is basically we got from the void ratio. Then after that we know what is the porosity. This is volume of void divided by volume of total. So that means the volume of void divided by volume of total क्या है, volume of solid plus volume of void. ठीक है, is it clear? Because we don't know the volume of void, we only have this relationship. तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसको ही रिप्लेस कर देंगे. तो 0.25 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ void, यहाँ पे फिर 0.25 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, इज इट क्लियर? बिकॉज वी यूज दिस इक्वेशन. अगर इक्वेशन वन को यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस वन. तो हाउ मच इट विल बी, तो 0.25 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय 1.25, क्योंकि यहाँ पे 1 है. ओके, तो 1.25 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे मैंने ये कर देता हूँ. तो 0.25 डिवाइड बाई 1.25, तो दैट मीन्स सिंपली 25 डिवाइड बाई 125, ये कितना होगा? एनीबडी? 0.2. Okay, so this will be 0.2, and you just have to 20. you just have to find it in percentage. So that means 0.2 into 100, so it will be 20%.
Okay, is it clear? So this will be the correct answer. सर इसमें डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, बीवी अपॉन बीवी हाँ प्लस हाँ, 1। वो तो मैंने पहले भी बता दिया. यू कैन यूज दैट, यू कैन यूज द डायरेक्ट फार्मूला, देयर बी नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज दैट कहीं पे अगर फिर आपको याद नहीं आता है या फिर मतलब कुछ इससे प्रॉब्लम्स होता है, आई हैव गिव यू दी प्रॉब्लमेटिक सिनारियो. अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है तो यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर मान लेते हो कोई प्रेशर में या फिर कुछ टेंशन में अगर आपको फार्मूला याद नहीं आता है, देन यू कैन इजीली डू इन दिस वे ऑल्सो. दिस इज द करेक्ट वे ऑल्सो. ओके, डायरेक्ट फार्मूला आप लगा के Okay, sir. टू सेव सम टाइम. Okay, so I'm just coming to the question number 29. Okay, so this is simply a scale problem. Okay, तो मैप वाला जो टोपोग्राफिक मैप वाला प्रॉब्लम, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड हियर. तो ऑन ए 1:10,000 scale, so this is a scale. So this is a scale, and in that scale of, in that map, ये मैप का स्केल है. in that map the length of a fault trace on a horizontal plane is presented as 5 centimeter. Okay, तो ये स्केल में आपको मैप में 5 सेंटीमीटर का एक लाइन मिल रहा है. ठीक है, लेंथ, सिंपली आप ये लेंथ वाला ले लो, ये सब चीज़ को छोड़ दो. वी हैव ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन ए मैप विच हैज ए स्केल 1:10,000. ओके, देन ऑन दिस सेम ऑन ए, मतलब वही लेंथ जो कि 5 सेंटीमीटर है. तो अभी इसी मैप में 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ग्राउंड केस में क्या होगा हम आप इसको देखेंगे. तो दैट सेम लेंथ, और यू कैन द सेम लेंथ ऑफ फॉल्ट ट्रेस ऑन ए डिफरेंट मैप. जो डिफरेंट मैप मीन्स स्केल भी चेंज हो जाएगा. तो स्केल डिफरेंट स्केल में, तो उसका कितना सेंटीमीटर ये होगा, बस यही आपको पूछ रहा है. ओके, तो वी हैव टू मैप. तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ द मैप ए व्हाट इज हैपनिंग. तो मैप ए केसेस में वी हैव ए स्केल दैट इज 1:10,000. तो इसका मीनिंग क्या है, तो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप विल बी 10,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड. ओके, नाउ वी हैव 5 सेंटीमीटर ऑन मैप, because it is written here 5 centimeter the fault trace, the length of the fault trace. So 5 centimeter on map, it will be 50,000 centimeter on ground. Okay, तो 50,000 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कर लेते हैं, दैट विल बी मच मोर इजियर, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमने यहाँ पे सेंटीमीटर ही तो यूज करना है. ओके, दिस इज इन केस ऑफ द मैप 1. ओके, मैप 1 केसेस में हमको ये मिला कि द लेंथ ऑफ द फॉल्ट ट्रेस दैट इज बेसिकली 50,000 सेंटीमीटर on actual ground. Okay, and that distance on the ground can be converted into a different map that has the scale of 1:25,000. ओके, तो इसमें आपको करना है. तो पहला चीज़ कोई बता सकता है कि यहाँ पे कम आएगा ज़्यादा आएगा, 5 सेंटीमीटर से कम आएगा ज़्यादा आएगा, एनीबॉडी? कम. ओके, दैट्स गुड. ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं कि 25,000 सेंटीमीटर on ground is basically 1 centimeter on map. So we'll get 50,000 centimeter on map में कितना आएगा, anybody? How much distance it will be? 25,000 centimeter. 2 centimeter. Everybody is getting ना, 25,000 सेंटीमीटर अगर 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 50,000 सेंटीमीटर ये जो ग्राउंड में है, तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. द आंसर विल बी सिंपली 2 सेंटीमीटर. ओके, टेक 2 स्केल्स. ओके, यहाँ पे 2 स्केल दिया गया है. सिंपली इनका क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूँ, तो ये आपके पास एक मैप है. इस मैप में आपको एक लेंथ दिख रहा है फ्रॉम ए टू बी, ये 5 सेंटीमीटर है, एंड इसका स्केल क्या है, 1:10,000. ठीक है, तो फिर वही जो मैप जो ग्राउंड लिए हैं, अगर मान लेते कि दिस इज रियल, दिस इज ऑन ग्राउंड. ओके, दिस इज ग्राउंड, इसको हमने ये स्केल में कन्वर्ट किया. तो फिर हमको क्या करना पड़ा, ये जो ग्राउंड में जो डिस्टेंस है, इसको हम एक दूसरा वाला मैप में प्लॉट करेंगे जिसका स्केल 1:25,000 है. ओके, इन दैट केसेस व्हाट विल बी द लेंथ. ओके, द सिंपल केसेस हियर. फर्स्ट जस्ट ट्राई टू find out the distance, the actual distance from this given data, then convert to the other map. Okay, so it is very easy one. Okay, so we have a geophysics problem. So in this problem you just have to find out the fraction of cell. It is not for JAM students. Okay, simply it is for the GATE students. Anybody has any idea how to do it? There is also direct formula and there is also indirect things also. If you know, it's okay. If you don't know, it's also okay. पहले हम डायरेक्ट फार्मूला कर लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट फार्मूला. तो डायरेक्ट फार्मूला आपको ऐसे लिखेगा कि द वॉल्यूम ऑफ सेल, बिकॉज दिस इज द गामा रे, दिस इज द गामा रे लगिंग.
ओके तो गामा रे लॉगिंग में क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ सेल और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ सेल और सैलिनेशन, वॉल्यूम ऑफ सैलिनेशन बेसिक कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सेल इज बेसिकली जी आर लॉग गामा रे लॉग, जो कि आपका लॉग में वैल्यू आया होगा। तो यहाँ पे क्या है 30 API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसका यूनिट में तो जी आर लॉग माइनस जी आर मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 20 API, देन जी आर मैक्स, मैक्स वैल्यू 45 API माइनस जी आर मिनिमम। ओके इज इट क्लियर? तो देन दैट विल बी गोइंग टू गिव यू द फ्रैक्शन। इसमें अगर 200 कर देंगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू द परसेंटेज। ओके तो इफ यू आर ट्राइंग टू यूज those values is already written here. This is the GR log, this is GR maximum, that means gamma ray log maximum GR log value, okay, and this is minimum gamma ray log value. So you can just try to put it is to 30 API minus, it will be ratio, that's why I'm just avoiding the API units. Okay, तो 30 API minus minimum कितना है 20 API divided by 45 minus 30 API, तो it will be 10 डिवाइडेड बाय API पे हटा सकते हैं बिकॉज इन द रेशियो इट विल बी लास्ट में जाके वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 15, सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 45 माइनस 20 होगा ना? 45 माइनस 20 आया सॉरी 45 माइनस सर 0.40 आएगा। हाँ लेट चेक। तो 45 ये हो जाएगा 25, तो 5 से कर देंगे तो 2, 5 से कर देंगे तो 5, तो 2.5, 2 by 5 that will be 0.40. Okay, the answer will be this one. Okay, so this is the direct formula, and one more thing is that if you don't know what is the direct formula, but आपको थोड़ा सा याद आ रहा है कि गामा रे लॉगिंग में कैसे होता है, तो इट इज जस्ट सिंपली ए गामा रे लॉग। ओके तो इफ यू जस्ट ट्राइंग टू सी यहाँ से कितने से स्टार्ट हुआ है, सो ये वाला SP छोड़ दीजिए, सेल्फ पोटेंशियल वाला ये लॉग है, ये वाला लॉग, तो इसको अभी मत देखिए। ओके तो ये वाला जो लॉग है दैट इज योर गामा रे, दैट द यूनिट्स इज इन API, दैट मीन्स फ्रॉम 0 API से 150, बेसिकली ये 200 API तक जाता है, बट यहाँ पे हमने हमारे डाटा के हिसाब से इसको मिनिमाइज मतलब नॉर्मलाइज किए हैं तो 150 तक। ओके तो ये जो 0 मीन्स इट इज कंटेंट्स ओनली सैंड। ओके 150 मीन्स इट इज कम्प्लीटली सेल। गेटिंग में पॉइंट ना? तो जहाँ पे ज़्यादा आएगा गामा रे, बेसिकली सेल में क्या कंटेंट रहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कंटेंट होते हैं, बेसिकली पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, तो वो बेसिकली गामा रे रेडिएट करते हैं या फिर डिके करते हैं। तो वी जस्ट हैव टू टेक दोज रेडियो एक्टिविटी के टू फाइंड आउट द गामा रे लॉग। तो हमने गामा रे लॉग उसलिए करते हैं। तो 150 मीन्स इट इज द मैक्सिमम, तो इन दैट केसेस द 100% सैलिनेशन, बट इट इज नॉट 100%, बट फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वी जस्ट हैव टू कंसिडर दैट इज द 100%। ओके तो 0 केसेस में 0%, 150 केसेस में 100%। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कोई डाटा आता है, अगर मान लेते कि 20, तो 25 केसेस में कितना परसेंटेज होगा? सिंपली आप नॉर्मल मैथ भी लगा सकते हैं। तो 0 केसेस में 0%, 150 API में दिस इज द API वैल्यू। ओके 150 में 100, ठीक है। तो 25 में क्या होगा? How much percentage it is? Anybody who can use the general mathematical formula. Anybody? कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? देखो जब आप इसी तरफ जाओगे तो इट विल बी इंक्रीज, जब इवन इफ जस्ट मूव टुवर्ड्स दिस वन इट इज डिक्रीजिंग, तो व्हाट इज द परसेंटेज हियर? तो अगर इसको सिंपली 75 लिए होते हैं, इफ दिस इज 75, तो कितना होता? How much percentage of the cell here? 50%? 50%, गेटिंग में पॉइंट ना? देखो ये 150 में 100% था, तो 75 में कितना आएगा? 50%। तो सिंपल दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो कैसे हमने कैलकुलेट किए? तो 150 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 150, गेटिंग में पॉइंट ना? तो ये 50% कैसे आया? तो 150 माइनस 75 मतलब मैक्सिमम से फिर मिनिमम को जो वैल्यू जो दिया गया है उसको ये किए, देन उसके अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे ऑल्सो कि 75 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 0। ओके इज इट क्लियर? एंड इट इज द सिंपल सेम थिंग, द GR लॉग वैल्यू, आपका लॉग वैल्यू कितना आया है? माइनस GR मिनिमम डिवाइडेड बाय GR मैक्स
माइनस जी आर मिनिमम। ओके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लॉग, हमारे पास दो लॉग हैं तो उसको पहले ये यहाँ पे लॉग, इन दैट लॉग what is the maximum minimum 20 and 45, this is your 20, this is your 45 API, okay, this is your API, okay, is it clear? Now we got a value, तो क्या है value हमारे पास 30 API is the value, G roll calculated, G gamma ray calculated value, तो अगर मान लेते हैं कि 30 will be come around 25, it will be come around this 35, तो इन दैट केसेस तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला ठीक है 35 माइनस 20 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय द होल, ये लेंथ कितना है, कि लेंथ कितना है 45 माइनस 20, तो हाउ मच इट विल बी 25, ओके, तो 5 से अगर करेंगे तो ओ ये 30 था ना, दिस इज 30 नॉट 35, हाँ दिस इज 30, तो 30 minus 20 that will be 10 minus 20, 10 divided by 25 that will be 2 by 5 that will be 0.4, ओके, परसेंटेज में करेंगे तो 40%, ओके, सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू, कि आपको थोड़ा सा अगर पता है कि गामा रे लॉग केसेस में कि कैसे कैसे हम उनको लेते हैं, देन आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस फार्मूला, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट वे, okay, that is direct formula, if you have remembered that one it's okay, otherwise you can also by using the gamma log, तो आप फार्मूला याद भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर होता तो 100% सेल होता, एंड इन दैट केसेस इट इज 0% सेल, सो इफ दैट इज इन बिटवीन एनी पॉइंट, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंट ऑफ द सेल, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, we have a reflection coefficient at the interface between two layers having the resistivity that is in ohm meter and this 1 ohm meter, what is the formula, there is also, it is also mainly geophysics cases में there is many formulas, okay, तो यहाँ पे भी आप फार्मूला याद करके जाना पड़ेगा, ओके, तो इट इज बेसिकली देखो यहाँ पे अपने इम्पीडेंस वाला पढ़े होंगे, एनी गेट स्टूडेंट्स हियर, एनीबॉडी, हेलो हेलो, am I audible guys? Yes sir, you are audible. यहाँ पे if you are trying to consider the electrical reflection coefficient, okay, so electrical reflection coefficient cases में क्या होता है, the resistivity of the second medium minus resistivity of the first medium divided by resistivity of the second medium plus resistivity of the first medium, and there is transmission coefficient also, okay, okay, so in these cases what will be the answer, the resistivity of the second medium, what is the second medium, in these cases what is the second medium, तो 2 layer, तो 9 ohm meter and 1, तो this is the second, 9 minus 1 divided by 9 plus 1, तो it will be 8 divided by 10, ठीक है, इंटरफेस में 2 लेयर, मतलब दिस विल बी दी 9 ohm meter, दिस इज बी 1 ohm meter, ओके, तो इफ देयर बी एनी, देयर बी बाउंड्री, सो वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये बाउंड्री में जब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा तो दैट विल बी दिस वन, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 0.8, द आंसर विल बी दिस वन, ओके, बट इन केस ऑफ द seismic survey, okay, this is the electrical surveys, there will be SP and you can say resistivity, all the things, okay, and in case of the seismic survey also there is another seismic survey cases में अलग होता है, seismic survey में क्या होगा, तो there will be acoustic impedance, और simply impedance भी लिख सकते हैं, impedance, okay, impedance can be calculated by taking the product of, impedance is basically taking the product of the density into the seismic velocity in that medium, अगर कोई medium का आपको impedance निकालना है तो it will be the density of the material into the velocity of the seismic velocity, okay, so it is just like that, तो why the impedance is basically important whenever you take any discontinuity, अगर मान लेते हैं कि more basic discontinuity, तो in that cases why the velocity is going to be decrease, अगर सर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, अगर मान लें कि दिस इज द भी वेलोसिटी ऑफ द प्राइमरी वेव, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ओके, तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज ये सब चीज़ होता है डिसकंटिन्यूटी में, ये क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द कंट्रास्ट इन द एक्यूस्टिक इम्पीडेंस, मतलब यहाँ पे जो इम्पीडेंस था, अगर मान लेते हैं दिस इज Z1, दिस इज Z2, ओके, इन दिस लेयर 1 द इम्पीडेंस इज बेसिकली
much more different than the impedance which is happening in the second layer. So that's why we got the different velocities. Okay, mostly in case of the reflection and in case of the refraction. Okay, so then what will be the reflection coefficient in case of the seismic survey, that is R. तो R को हम कैसे लिखते हैं? Simply that will be Z2 minus Z1, that means the acoustic impedance in case of the second layer minus the acoustic impedance of the first layer into divided by Z2 plus Z1. Okay, and it is simply the amplitude of the reflected ray and the upon the amplitude of the incident ray. ओके तो यहाँ से भी फिर आप इंटेंसिटी भी का कनेक्शन भी कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके देन सिंपली यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी आ जाएगा. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे. ओके, एंड व्हाट इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट केसेस में क्या होगा? इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड रे डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे यू गाइस ऑलरेडी नो Z2 plus Z1. तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड रे केसेस में क्या होगा? तो दैट विल बी सिंपली 2Z1 डिवाइडेड बाय Z2 plus Z1. ओके, एंड सिंपली यू कैन ऑल्सो यूज दिस इंटेंसिटी वाला. यहाँ पे अगर इसको सबको स्क्वायर कर दूँ तो इट विल गोइंग टू गिव यू इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रे डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे. ओके, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट वे ऑल्सो. इफ अगर कहीं पे भी कुछ भी दिया है, इंटेंसिटी अगर दिया गया है तो एम्पलीट्यूड आपको पता है तो यू जस्ट हैव टू टेक द स्क्वायर. ओके, so this is the question number 8 and we have already done these things in two different ways. This is the electrical. यहाँ पे बस आपको इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, बट सेस्मिक सर्वे में भी हम कुछ यूज करते हैं. मेनली इट इज यूज इन सेस्मिक सर्वे. ओके, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे दिए गए हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस रेजिस्टिविटी 2 मीडियम का दिया गया है, जस्ट हैव टू यूज दैट फार्मूला. ओके, सो एनीबॉडी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. In case of the earth, you should know about the magnitude, okay, intensity, okay, and the energy. ये तीनों चीज अगर आपको पता है ना तो यू कैन इजीली डू एनी क्वेश्चन दैट मे बी MCQ, MSQ और NAT. देयर विल नो प्रॉब्लम. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज इन फॉर्मेट ऑफ द MCQ, बट ये NAT केसेस में भी आ सकते हैं. ओके, तो मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी एंड एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो. एम्पलीट्यूड आपने इंटेंसिटी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने उनको पता है रिलेशनशिप अभी डिस्कस किया, दैट इज द स्क्वायर. ओके, तो देन सिंपली इफ यू ट्राइंग टू सी, तो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को हटा के एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ डायरेक्टली. ये किसका एम्पलीट्यूड? द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव. ये तीनों चीज अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द थिंग्स. ओके, हाँ, okay, so these things is it magnitude, intensity and energy. And intensity you can also correlate with the amplitude of the seismic wave. Okay, so we'll see. तो magnitude को okay, तो let me just ask you, तो what is the magnitude? Magnitude को हम कैसे measure करते हैं? In which scale? Anybody? The magnitude is measured Richter scale. And intensity को कैसे measure करते हैं? सर मर्कली modified Mercalli. Yes. That is also modified Mercalli also, but it's okay, no problem. Okay, so we are going to see. So what is the question asked? So I have already told you what is important in case of the earthquake, and there is another things also earthquake cases में वही this is your hypocenter or you can say focus. This is your epicenter exactly above. Okay, on the surface. So this is the this is the focus distance. Okay, जिसको हम बोलते हैं focal distance भी बोलते हैं. दिस इज द फोकल डिस्टेंस. यहाँ पे अगर स्टेशन है तो फिर स्टेशन में ही रिकॉर्ड होगा. दिस इज द एपी सेंट्रल डिस्टेंस एंड दिस इज द हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस. ओके, तो ये थोड़ा सा आपको पता लगाना है. ओके, ये इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के सेंस में. और एक चीज़ अर्थक्वेक में इंपॉर्टेंट ये है कि इन हुईच एनवायरमेंट इन हुईच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज बेसिकली गोइंग टू बी हैपेंड. सालों में क्या होगा, तो डीप में क्या होगा, मेनली सबडक्शन केसेस में क्या होगा, मिड ओशन केसेस में होगा. यू कैन इजीली फाइंड आउट इन एनी standard book these things. Okay, now come to this question. So what is given here? Two earthquake for earthquakes having magnitude 6. दो earthquake है 6 and 7, तो उसका magnitude हमने मेजर कर लिए हैं by using the Richter scale, that is 6 and 7. The seismic wave have an amplitude of A6 in case of the 6 magnitude
and A7 that is in case of the 7th magnitude earthquake. Okay, and they radiate some energy. Obviously the energies are E6 and E7. Okay, and then we just have to choose which one is the correct. Okay, so how we are going to do, the first thing is that अगर यहाँ पे 6 में मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड में आपको पता ही होगा बिकॉज इट इज आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन एग्जाम इन गेट ऑल्सो, मैग्नीट्यूड केसेस में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पलीट्यूड, दिस इज द 10 फोल्ड. ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो 1 से अगर 2 होता है देन इट विल बी इंक्रीज हाउ मच टाइम्स 10 फोल्ड्स. ओके, अगर 2 से 3 हो जाता है तो इट इज अगेन 10 फोल्ड्स. ओके, देन सिंपली 1 से 3 होगा तो कितना होगा 100 फोल्ड्स. 10 टू पर n ऐसे आप बोल सकते हैं. मैग्नीट्यूड से एम्पलीट्यूड जब होगा तो दैट विल बी बेसिकली 10 फोल्ड्स इंक्रीज होगा. गेटिंग में पॉइंट ना. इसको अगर सिंपली आप मैथमेटिकल वे में देखेंगे तो दिस इज बेसिकली दी टेक्स्ट फॉर्मेट. तो मैथमेटिकल वे में देकर देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस. तो इट विल बी A7 amplitude in case of the 7th magnitude earthquake is equal to 10 times of the amplitude which is measured in case of the 6th magnitude earthquake. Okay, so this is the whole formula, and you can also, there is a direct formula you can use also, but this is the common one. You can rely on that, there is no problem. So magnitude of the any seismic wave, it can be written as log amplitude divided by t. T is basically time required, okay, to reach at the station. Okay, then after that plus 66 point log, not point, 66 1.66 is equal log ये हो गया आपका एपिसेंटर डिस्टेंस प्लस 3.3. बट इट इज़ नॉट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये आपको इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पे अगर सिंपली यहाँ पे मैं और एक लिखूँ तो एम्पलीट्यूड ऑफ द 7 मैग्नीट्यूड इज बेसिकली हाउ मच टाइम्स 100 टाइम्स किसका होगा 5 का. ठीक है, मतलब 10 फ्लोर इंक्रीज होता जाएगा. दिस इज वेरी इजी वन. ओके, देन आफ्टर दैट इफ यू ट्राइंग टू मूव टुवर्ड द एनर्जी अगर कोई रिलीज होता है तो दैट विल बी एनर्जी व्हेन द अर्थक्वेक इज बेसिकली गोइंग टू बी हैपन, द एनर्जी विल बी रिलीज. तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. दैट दिस इज इंपॉर्टेंट. log 10e 1. पहले वहाँ 4.8 को लिख सकते हैं, देन उसके बाद 1.2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4.8 प्लस 1.5 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. log 10e या सिंपली log e is basically energy, m is equal to magnitude of the seismic wave. Okay, 4.8 plus 1.5 magnitude. Okay, so we are going to see. So in case of the 6 how much it will come, and in case of the 7 how much it will come. Okay, so we have 2, 6 and 7 magnitude earthquakes. Okay, तो पहले देख लेते हैं कि how much energy is going to be released in case of the 6. ठीक है, तो एनर्जी 6 मैग्नीट्यूड में इतना एनर्जी रिलीज होगा. एंड व्हाट विल बी द फार्मूला 4.8 प्लस 1.5 मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ द 6 अर्थक्वेक. ओके, जो 6 मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक, तो इसमें मैग्नीट्यूड इतना आएगा. दैट विल बेसिकली 6 ना, हम अभी M6 लिखते हैं. log 10 एनर्जी रिलीज्ड एट 7th मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक 4.8 प्लस 1.5 मैग्नीट्यूड ऑफ द 7. ओके, एंड इसको दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को अगर यूज़ करके अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो द आंसर विल बी, इनको अगर हम माइनस कर देंगे तो log 10 E7 केसेस में ज़्यादा आएगा, तो माइनस द मिनिमम इज इक्वल टू 4.8 मैंने काट दिया. ओके, तो 1.5 मैग्नीट्यूड ऑफ 7 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द 6. ठीक है, तो ये इसको हम सिंपली 1 भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 7 माइनस 6. ठीक है, ओके, तो इट विल बी log E7 माइनस log E6, इट विल बी 1.5 सिंपली, क्योंकि 7 माइनस 6 दैट विल बी 1. ओके, देन इट विल बी log E7 डिवाइडेड बाय E6. ये अगर माइनस को अगर कंबाइन कर देंगे तो दैट विल बी 1.5. ओके, देन हाउ मच इट विल बी, तो 10 टू द पावर 1.5 इज बेसिकली E7 इंटू E6. ओके, तो मैंने इसको सिंपली
ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, देन 10 to the power 1.5 कितना होगा, एनीबडी? 31.62. okay, 31.62 times of energy released during this sixth magnitude earthquake is equal to energy released by 7. so this will be the relationship between the energy. कोई अगर एक मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो इतना टाइम्स एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है. ओके, देन वी कैन यूज द ऑप्शन 31.62. ओके, तो 31.62. जनरली वी टेक 32. हाँ, जनरली वी टेक 32. ओके, तो इसको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन में भी 32 है शायद. ओके, तो हमने अभी क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड केसेस में क्या था, 1.7 इज 10 to the power 1.6, तो ये वाला. ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, ये दिस वन एंड ऑल दी थिंग्स एक्सेप्ट दिस वन. ओके, हाँ, देन वी गॉट द एनर्जी कितना होगा, 32 टाइम्स. ओके, 32 टाइम्स, दैट मीन्स द आंसर विल बी डी. ओके, सो गेट स्टूडेंट्स के लिए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट हैव टू नो इफ देयर इज एनी अर्थक्वेक रिलेटेड में अगर आपको ये तीनों चीज़ याद आ गया, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, दैट इज बेसिकली दी एम्पलीट्यूड का कोरिलेशन कर सकते हो, देन एनर्जी, ये तीनों चीज़ का फार्मूला एंड द रिलेशनशिप इन बिटवीन देम एंड द एपिसेंट्रल एंड हाइपोसेंट्रल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस एंड स्टेशन डिस्टेंसेस. तो अगर आपको वो पता लग गया ना, देन वी कैन इजीली डू एनी अर्थक्वेक. वो डिस्टेंस टाइम डिफरेंस वाला हो या फिर डिस्टेंस निकालना हो या फिर जो आपको अगर अरेंजमेंट एक समझ में आ गया या फिर आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आ गया, देन इट इज़ मच मोर ईजियर. ओके ओके ओके, सो we'll do another 1 or 2 questions, then after that we're going to complete the session. Okay, so this is the structure contours having a bed of 100 meter interval. मतलब structure contour cases में 100 meter interval है and they are spaced, that means horizontal spacing in such a manner that horizontal equivalent यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा, 100 meter. The deep of the bedding will be anybody. This is very easy one. 45. Very good. तो difference क्या है, elevation difference 100. that will be 100 meter. Okay, and the spacing that will be 100 meter. Okay, then you can simply use the tan theta. Theta is basically the deep of the bed, that is contour interval. सर, हाँ, इसको हम अगर ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? okay, so we got this is the two structure contours. Okay, एक ऐसा गया है and another one this way. Okay, this is the, and if you trying to plot that one into horizontal surface, so this will be the horizontal spacing. ठीक है, this is your 100 meter. Okay, and आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, this is the right angle triangle. Okay, तो if you trying to find out, this is the deep. Okay, otherwise this is the same with the theta. ठीक है, तो थीटा केसेस में दिस वन इज 100 मीटर क्योंकि इंटरवल 100 मीटर था. ठीक है, देन वी कैन यूज tan theta will be this 100 meter, that is contour interval and the horizontal spacing, this one. Okay, this is a b, ऐसे लिख लेते हैं, c divided by a b. तो a b यहाँ पे कितना है, 100 मीटर. so the theta will be tan inverse 1, that is 45 degree. Okay, the answer will be 45 degree. Okay, आपको समझ में आया ये वाला? अगर मान लेते हैं कि दिस इज योर 800 मीटर, दिस इज योर 700 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 100 मीटर का डिफरेंस. ठीक है, यू आर गेटिंग इट विक्रम? यस सर. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस. ये गामा रे से शायद यहाँ से 2014 का स्टार्ट हुआ था ना. हाँ, 14 का. ओके, हाउ टू डू दिस वन, एनीबॉडी? ए एक्सिस में कितना है, 4 यूनिट. ओके, इफ यू ट्राइंग टू सी द इजी वन, ओके, यू कैन सी दिस इज द सेंटर, 1 2 3 4. ओके, देन द विड्थ पैरामीटर along a axis, that will be anybody 4. okay, then the width parameter along b axis, that is 1 only. Oh sorry, 1. Okay, and along c the width parameter it will be 1 2. Okay, width parameter हमको अभी मिल गया. Then after that we can easily find out the Miller indices, that is the
reverse, or you can say reciprocal of which parameter? 1/4, 1/1, 1/2. 142. क्या होगा? सर 142 इसका सर एलसीएम लेना पड़ेगा वो मल्टीप्लाई करके. Okay, so we'll multiply how much? 4. Okay, then उसके बाद we'll get 4 into 1 into divided by 2, that will be 142. Okay, the answer will be 142. Okay, and there is another one also. Okay, and there is another one also. If you are trying to see, so what happens? There is another one to calculate the Miller indices. So what it is? It is basically by using the unit cell dimension. By using the, someone trying to join the unit cell dimensions. Okay, अगर मान लेते कि A, B, C, okay, then after that the axial intercept, मतलब ये कितना डिस्टेंस में, that is basically in case of the real crystal. Okay, तो रियल क्रिस्टल केसेस में क्या होगा, ये आपको कुछ डिस्टेंस में आएगा. अगर मान लेते कि ये कुछ 10 एंगस्ट्रॉम में आता है या फिर 10 सेंटीमीटर में आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन इन दैट केसेस तो आपको फिर ये क्रिस्टल किसका है, अगर मान लेते कि कैल्साइट का. ओके, ये दिस इज द कैल्साइट. तो द कैल्साइट का यूनिट सेल डायमेंशन यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट इट, तो इसको पता ही होगा क्योंकि ये यूनिट सेल कैल्साइट केसेस में हेक्सागोनल का होगा, तो हेक्सागोनल का यूनिट सेल आपको पता होगा कि उसका डिस्टेंस कितना है. इट विल बी ए बी सी अगर मान लेते हैं. देन द एक्सियल इंटरसेप्ट्स, एक्सियल इंटरसेप्ट्स मीन इट इज द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द फेस जहाँ पे डिस्टेंस में कट किया होगा. ठीक है, अगर मान लेते हैं दैट इज योर आई ए, आई बी एंड आई सी. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड टेक द एक्सियल रेशियो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर होगा, मीटर में तो नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर एमएम में होगा. तो इसको करने के लिए हमने क्या करते हैं, एक्सियल रेशियो लेते हैं बाय डिवाइडिंग दी बी. ओके, ये इसको बी को डिवाइड करके हम इसको एक एक्सियल रेशियो ले लेते हैं. देन आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस. द मिलर इंडिसेस कैन बी, फास्ट मेथड आपको पता है, फास्ट मेथड में हमने क्या किए, टेक द एक्सियल रेशियो. ठीक है, देन सेकेंड मेथड मेजर दी एक्सियल इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे जो मेजर एक्सियल इंटरसेप्ट्स हैं उनको मेजर किए, मेजर दी एक्सियल इंटरसेप्ट्स. एंड थर्ड थिंग इज दैट वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द मिलर इंडेक्स by taking the ratio of, or you can say fraction of, axial ratio divided by the axial intercepts. मतलब तो यहाँ पे जो एक्सियल रेशियो अगर मान लेते हैं दिस इज योर ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ठीक है, तो इन दैट केसेस it will be A by IA, B by IB, C by IC. Okay, then the last one, clear the fraction. ओके, तो क्लियर करने से आपको मिल जाएगा. तो देयर इज द टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज दैट इफ देयर इज ओनली सेल का अगर मतलब एक्सियल इंटरसेप्ट दिया गया है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द ए बी यूनिट में कितना डिस्टेंस में, दैट इज द सेम थिंग. यहाँ पे वो चीज़ें में कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिट सेल डायमेंशन पता होना चाहिए. अदरवाइज बाय यूजिंग दिस वन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दिस फॉर्मूलाज. Okay, so the relative enrichment factor we'll see in the next class. It is a very long question. Okay, first you just have to understand what is isotope and what are the different types of isotope, and there is what is isotopic fractionation. All the things you just have to first understand, then after that we'll move to the relative enrichment factor. Okay, so see you guys in the next class. If anybody has any